गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड, or in other words measures to correct deficient demand and excess demand. Both we shall discuss right now. So let us learn measures to correct deficient demand and excess demand, or you can say measures to correct deflationary gap or inflationary gap, or you can write this one also. Okay, we shall write later. So first we shall discuss measures to correct deficient demand. So write down all of you measures to correct deficient demand, or in bracket write down or deflationary gap. How you will correct if there is deflationary gap or deficient demand in the economy? अगर deficient demand economy में exist कर रहा है, how we can correct it? तो there are two important measures. Write down all of you. There are two important measures to correct deflationary gap or deficient demand. Both are almost same, because you know deficient demand creates deflationary gap in the economy. Already we have discussed this one in previous class. So there are two important measures you write down. Two important measures to correct. Two important measures here write MEASURES, measures to correct deflationary gap or deficient demand. So what are these measures? These measures are, write down, these important measures are, first पहला है fiscal measure. What is this? Fiscal measure. And second one is monetary policy measure. Here you can also add fiscal. I am writing here fiscal policy measure and monetary policy measure. Here you also add policy, fiscal policy measure, fiscal policy measure, and second one is monetary policy measure. So let us fiscal policy measure. Fiscal policy measures first write down. First, then we shall discuss second one. First one,
fiscal policy measures. Write down, it includes the measures of government expenditure and taxes. So, under fiscal policy measures, two important tools are used. One is government expenditure and second one is taxes. These two tools are used under fiscal policy measure. So the moment fiscal policy comes in your mind, जैसे ही fiscal policy, fiscal मतलब राजकोषी, गवर्नमेंट का पॉलिसी रिगार्डिंग income and expenditure. So as you know, the government income sources is taxes and other things. These taxes are spent on the public welfare, that comes under government expenditure. So the moment this comes fiscal term, जैसे ही दिमाग में आवे आपको समझ लेना इसका रिलेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेस से है. ये क्लियर हो गया? तो लेट अस डिस्कस व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इफ देयर इज डिफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, बिकॉज वी आर लर्निंग फर्स्ट मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड. तो डिफिशिएंट डिमांड के टाइम में व्हाट, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस. तो इसमें हम लोग फर्स्ट राइट डाउन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. government expenditure. Write down, in the time of deficient demand, in the times of इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये. इन द टाइम्स ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, शॉर्ट में लिख दिया है जीओबीटी, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन इट्स एक्सपेंडिचर. Government should increase its expenditure. Now, what he should do in the times of deficient demand? Government should increase in its expenditure. अपने खर्चे में बढ़ाना चाहिए, because हमने 100 टाइम्स बोला है पिछले क्लास में, once expenditure, एक का खर्च दूसरे का इनकम होता है. Once expenditure becomes the other's income. तो कहां खर्च करेगा? Government should increase its expenditure. Where government should increase? Government should, again write down, government should increase expenditure on the construction of नोट डाउन करते जाओ आप लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे
डैम्स, टैंक्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, BUINDING, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स and other welfare scheme. And other welfare scheme. So, first of all, if there is deficient demand कम है in the economy में, तो government should increase its expenditure. Government should increase expenditure on the construction of road, railways, dams, tanks, hospitals, school building and other welfare scheme. तो अगर इन सब चीजों पे खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो क्या होगा? People will get employment. As a result, the income will increase. Consequently, the demand will also increase. Aggregate demand भी बढ़ेगा और जिसके चलते जो डिफिशिएंट डिमांड है वो खत्म हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट मेजर टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड. एक ये हुआ. दूसरा, इस पॉलिसी के तहत अंडर मेजर में एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ले लिया हमने. दूसरा है टैक्सेस. तो सेकेंड राइट डाउन टैक्सेस. In the times of, again write down, in the times of deficient demand, शॉर्ट में लिखा है GOBT डॉट, गवर्नमेंट शुड reduce the taxes. What it should do? सबसे पहले at the time of deficient demand, अगर इकोनॉमी में डिमांड की कमी है, डिफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट को टैक्स स्ट्रक्चर में कमी करना चाहिए. हमने लिखा है in the times of deficient demand government should reduce the taxes. गवर्नमेंट को टैक्स में रिडक्शन करना चाहिए. अब देखो टैक्स जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा? राइट डाउन हियर अगेन, रिडक्शन इन टैक्सेस increases the disposable income of the people. क्या करेगा? वो जैसे ही टैक्स डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा किसमें? डिस्पोजेबल इनकम में. हमने बताया था आपको डिस्पोजेबल इनकम, बार बार बता रहा हूं, फिर एक बार बता देता हूं. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है मैं फिर मिटा दूंगा, यहां बता रहा हूं. अगर आपकी सैलरी 50,000 है, इनकम इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000, अगर 20% टैक्स है, सपोज कि गवर्नमेंट ने पहले 20% इनकम टैक्स इंपोज किया है आपके ऊपर, तो 50,000 का 20% 10,000 होगा. इसका मतलब यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट टू द गवर्नमेंट 10,000. तो आपके पास जो डिस्पोजिंग मनी है यू कैन ओनली यूज डिस्पोज दिस मच अमाउंट 40,000. अब मान लो ये 20% से घट के 10% कर देता है, जैसे रिडक्शन इन टैक्सेस में बताया है, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्सेस. अब ये 20% घट के आपका बन जाता है 10%. तो जब 10% होगा तो क्या होगा? नाउ यू हैव टू पे ओनली 5,000, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000 होगा. यू हैव टू पे नाउ ओनली हाउ मच?
5,000, तो योर इनकम विल इंक्रीज, 40,000 से आप कितना हो जाएगा आपका इनकम, योर इनकम विल बी नाउ 45,000, इंक्रीज हुआ ना। तो यू कैन डिमांड 5,000 मोर इन द इकोनॉमी। अगर सभी आदमी का 5,000 बढ़ जाए तो पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर कमोडिटी, मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे ही ज्यादा डिमांड सब आदमी करेगा तो एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड विल राइज, तो डिफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगा। डिफिशिएंट मतलब कम होना। अब तो सारे का इनकम बढ़ गया रिडक्शन इन टैक्स के चलते, अब जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम हमारा जो डिफिशिएंट डिमांड का था वो खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको फिस्कल मेजर्स के तहत लिखना है। ये हो गया। अब जो इसमें बस इतना ही है केवल फिस्कल मेजर्स में, दिस मच इज सफिशिएंट। अब दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। अब उसकी चर्चा मैं करता हूं डिटेल में। मॉनेटरी पॉलिसी सेकेंड वन, ये दूसरा नंबर आ गया। पहला फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। सेकेंड नाउ मॉनेटरी पॉलिसी measures. Write down what is this? What is monetary policy measures? First write down monetary policy measures. Measures are the measures used by central bank to control money creation or to control credit creation. Write down, it is better, to control credit creation to control credit creation side. Write down credit creation or to affect the money supply in the economy. What it does, it directly affect the money supply in the economy. Monetary policy measures, it is generally applied by the central bank. I have written here monetary policy measures used by the central bank. Central bank in India is RBI, Reserve Bank of India, to control credit creation. It has the capacity, either it can increase credit creation or decrease credit creation. Credit creation means what? The increase in deposit of the commercial bank or reduction, both it includes. So credit creation or to affect the money supply in the economy. ये मनी सप्लाई को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, सो ये प्रभावित करता है। तो दैट मेजर्स इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसको आप लोग लिख लो पहले। अब व्हाट आर द पॉलिसी आर एडॉप्टेड टू कंट्रोल डिफिशिएंट डिमांड, तो उसकी चर्चा हम वन बाय वन कर रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, अच्छा मैं नीचे कुछ जगह है भी लिख लेता हूं। तब फॉलोइंग, राइट डाउन फॉलोइंग स्टेप्स, following measures, following policy measures, right now following policy measures are
adopted by central bank, in bracket write down RBI. In India our central bank is RBI. Following policy measures are adopted by central bank to correct deficient demand in the इकोनॉमी। ये कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं तो लिखो एक एक करके। पहला, फर्स्ट, इसके तहत अंडर मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में कौन कौन से, वैसे हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको एक बार और, जब हम लोग कॉमर्शियल बैंक पढ़ेंगे या सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर अगेन वी शैल डिस्कस। लेकिन यहां पर आप लोग अच्छी तरह से लिख लो इसके तहत क्या क्या steps or what are the policies are adopted by the central bank to correct the deficient demand। सबसे पहले लिखो कैश रिजर्व रेशियो। पहला क्या करता है, कैश रिजर्व रेशियो, इन ब्रैकेट राइट डाउन CRR। ये CRR क्या है? What is this? This is the most important instrument of the central bank to control credit creation, to control money supply. Either it can increase or it can decrease. It depends upon the cash reserve ratio. तो cash reserve ratio है क्या? पहले इसको लिखो। Every commercial bank is required to keep, every commercial bank is required to keep certain percentage of its total deposit, with central bank. This is termed as cash reserve ratio। What I have written here, क्या लिखा? Every commercial bank is required to keep certain percentage of its total deposit with central bank. This is termed as cash reserve ratio, CRR। प्रत्येक कमर्शियल बैंक को, एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट। जितने डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंट, 4% हो, 3% हो, 5%, इट डिपेंड अपॉन द रेट। व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो इज बीइंग फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक फिक्स करती है। तो इट इज द कंपल्सन टू द कमर्शियल बैंक, इट हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट विद द आरबीआई। दैट अमाउंट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्लियर मैंने लिखा भी है, इसको आप लोग अच्छा से लिख लो। तो सीआरआर इन द, अब लिखना है इन द टाइम्स ऑफ, सीआरआर का डिफिनेशन हो गया, इन द टाइम्स ऑफ deficient demand
Central bank should reduce the CRR, the rate of CRR. अब CRR रेट को कम रखना चाहिए, कम कर देना चाहिए, तो व्हाट विल हैपन? रिडक्शन इन CRR, राइट डाउन, reduction in CRR will lead to increase the quantum of quantum of vault case, or that is like quantum of cash, liquid cash, write down, or cash with the commercial bank. Now commercial bank can give more loan to its customer. As a result, people will demand more goods and services. Mainly, what will happen when bank reduces the CRR? Then what will happen? Now the commercial bank will have more vault cash with them because it has to pay less amount of its total deposit with the commercial bank. As a result, it can give more loan to the people and people can use that money for the purchasing of capital goods, mainly goods and services. As a result, the aggregate demand will rise. So this is the first measures to correct deficient demand. मैं इसको मिटा रहा हूं. उसके बाद दूसरा, सेकेंड मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी का. पहला कैश रिजर्व रेशियो था, दूसरा लिखो आप लोग. सेकेंड है रिडक्शन इन, दूसरा लिखो रिडक्शन इन बैंक रेट, इन ब्रैकेट राइट डाउन, और रेपो रेट. सीआरआर को मैं रहने देता हूं, लिखने में दिक्कत होगी आपको, बाद में मिटाऊंगा इसको मैं. सेकेंड पॉइंट राइट डाउन, रिडक्शन इन मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड चल रहा है. मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड. सेकेंड पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स का. एक पहला हुआ कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा पॉइंट लिखो रिडक्शन इन
bank rate, or in bracket write down or repo rate or repo rate. Bank rate or repo rate, both are same. So first reduction in bank rate to correct deficient demand. What is the repo rate? Write down. The rate at which central bank advances loan to commercial bank is known as bank rate or repo rate. The rate at which central bank advances loan to commercial bank is known as bank rate. सेंट्रल बैंक जिस दर पे रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्टेनिंग मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो जिस रेट पे उसको इंटरेस्ट पे लोन देती है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक रेट और रेपो रेट. सो इन द टाइम ऑफ राइट डाउन इन द टाइम्स ऑफ डिफिशिएंट डिमांड का करेक्शन चल रहा है, इन द times of deficient demand, central bank should reduce the bank rate. Reduction in bank rate leads to reduction in bank rate leads to the reduction in rate of इंटरेस्ट. अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बैंक रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं. एक चीज जान लो आप लोग, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू द पीपल, प्राइवेट पीपल. हम आप लोग जहां से लोन लेते हैं कोई बैंक से, जैसे एसबीआई से लिया, यूको बैंक से लिया, इंडियन ओवरसीज बैंक से लेते हैं, तो बैंक जिस कमर्शियल बैंक के जितने सारे हैं, तो ये हमें आपको जिस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन देती है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है. और कमर्शियल बैंक जब लेती है लोन सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे देती है कमर्शियल बैंक को लोन मनी, तो वो कहलाता है बैंक रेट. क्लियर हो गया? तो बैंक रेट का डायरेक्ट रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट से है. इफ बैंक रेट इज लो, नेचुरली वही पैसा तो फिर हमें देती है सेंट्रल बैंक ने, इससे लेता है कमर्शियल बैंक, दैट मनी इज अगेन गिवन बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल. तो जब बैंक रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, पीपल विल बोरो मोर मनी फ्रॉम द बैंक एंड दे विल इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट. तो नेचुरली द डिमांड विल इंक्रीज, वो कैपिटल बूस्ट का डिमांड बढ़ेगा और इसके डिफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगा. तो रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब क्या होगा? रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिडक्शन इन
rate of interest will increase, leads to increase in investment demand and eventually aggregate demand will rise, and by this way deficient demand can be corrected. अच्छा से लिख लो यहां पे, deficient demand can be corrected. तो डिफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगा जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा. पीपल विल बोरो मनी, मोर मनी फ्रॉम द बैंक एट द चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दे विल इन्वेस्ट दैट मनी इन द मार्केट. और इन्वेस्टमेंट जब भी होगा, कैपिटल गुड्स पे परचेजिंग होता है, मशीनरी पे होता है, ट्रैक्टर्स पे होता है, रॉ मटेरियल्स पे होता है. तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के तहत आते हैं, जिसके चलते aggregate demand will rise and deficient demand will be removed. Now ये दो हुआ. थर्ड जो है हमारा रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट. तीसरा रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट. ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट. ये रिवर्स रेपो रेट लाई डाउन व्हेन द रेट at which commercial at which central bank write down, central bank borrow money from the commercial बैंक. अब देखो यहां पे sometimes central government also borrow money but they borrow from the commercial bank. ऐसा नहीं हमेशा सेंट्रल बैंक ही देती है लोन कमर्शियल बैंक को. समटाइम्स कभी कभी सेंट्रल बैंक आल्सो बोरो मनी. अब वो कहां से बोरो करेगी? पब्लिक से तो डायरेक्ट डीलिंग होती नहीं है सेंट्रल बैंक का. मैंने बताया ये फीचर्स है सेंट्रल बैंक की, जब हम लोग डिस्कस करेंगे बताएंगे आपको. सेंट्रल बैंक डजंट डायरेक्टली डील्स पीपल. तो वो सेंट्रल बैंक कहां से पैसा लेगा? कमर्शियल बैंक गेट बाय सेलिंग सिक्योरिटीज. लेकिन जब सेंट्रल बैंक को कभी कभी पैसे की जरूरत होती है तो इट आल्सो बोरोज, ये भी बोरो करती है. लेकिन किससे करती है? कमर्शियल बैंक से. तो मैंने लिखा है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी, बोरोज लिख लो इसको, ऐस कर देना इसमें, बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. this rate, this is termed as reverse रेपो रेट. ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है जबकि वो बैंक लेगी. अब कमर्शियल बैंक से ले रहा है तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे उसको दे रहा है सेंट्रल बैंक को, तो दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. अब उल्टा हो रहा है ना, रेपो रेट तो है जबकि कमर्शियल बैंक से देगा लोन,
कॉमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक खुद लोन ले रही है, तो रिवर्स रेपो रेट, समझ में आ गई है? तो सेंट्रल बैंक शुड, ये रेपो रेट फिक्स करती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक शुड reduce the reverse repo rate at the time of डिफिशिएंट डिमांड। अब देखो डिफिशिएंट डिमांड जब है, डीई है ये, एट द टाइम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड के टाइम में रिवर्स रेपो रेट कम करना चाहिए। तो क्या होगा इससे? तो कॉमर्शियल बैंक कम रेट पे इट वुड नॉट लाइक टू गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, वो अपने पास रखना चाहेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक कैन अर्न मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द पब्लिक, तो वो पब्लिक को ज्यादा देगी। दिस will discourage, right now, this will discourage the commercial bank to park money with सेंट्रल बैंक। अब क्या होगा कि दिस विल डिस्करेज, वो डिस्करेज होगा, वो देना नहीं चाहेगा। डिस्करेज द कॉमर्शियल बैंक टू पार्क मनी विद द सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक में पैसा रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट बहुत कम है, रिटर्न बहुत कम मिलेगा कॉमर्शियल बैंक को। एज ए रिजल्ट commercial bank can use money for giving loan to the public with the motive to earn more, the motive to earn more प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट कहां है? अगर वो, या आप मोर इंटरेस्ट, आप ऐसा देख लीजिए, मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब देखो, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक वुड नॉट लाइक टू पार्क देयर मनी विद द सेंट्रल बैंक, वो रखना वहां पसंद नहीं करेगा। रेदर कॉमर्शियल बैंक वुड लाइक टू गिव मनी टू द पीपल सो दैट ही कैन अर्न मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर प्रॉफिटेबिलिटी ही कैन अर्न बाय गिविंग लोन टू द पब्लिक पीपल। तो रिडक्शन इन द टाइम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। अब जब उसको पब्लिक को लोन देगा, नेचुरली द डिमांड विल राइज, वो मनी तो फिर इन्वेस्ट होगा, दैट डिमांड विल राइज और डिफिशिएंट डिमांड समाप्त हो जाएगा। ये तीसरा है, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा, सेकेंड, थर्ड। अब चौथा लिखो आप लोग।
Fourth one. Fourth, open market operation. Open market operation. ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इन ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स, राइट, आई एम राइटिंग हियर. ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स, राइट डाउन, open market operation means purchasing and selling, both purchasing and selling of government securities, in open market. What is the meaning of open market operation? What it does? Central bank sells government securities, because as you know central bank acts as an, the functions of, जब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक में तो उसमें बताऊंगा मैं, सेंट्रल बैंक्स एक्ट्स एज एन एजेंट बैंकर ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो एक एजेंट के रूप में इट परचेजेज, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यहां में लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस purchasing and selling of government securities in the open market. Government securities आप समझते होंगे, it is a type of bond. बॉन्ड भी एक सिक्योरिटीज ही है और डिबेंचर्स जो है वो भी एक सिक्योरिटी है. तो उसकी परचेजिंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना, ये करता है कौन? तो सेंट्रल बैंक करता है. ये मींस परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट. यहां क्लियर कर देता हूं मैं, बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ये ऑन बिहाफ ऑफ होता है, गवर्नमेंट के लिए करता है ये. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद नहीं बेचती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के थ्रू बिकती है. तो यहां लिखा है मैंने ओपन मार्केट. अब करना क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? क्या करना है? जब डिफिशिएंट डिमांड है इकोनॉमी में, तो राइट डाउन हियर, during deficient demand, central bank should purchase government security in the गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब देखो ये सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए. जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, परचेज करती है, तो मनी किसके पास जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास जाएगा ना. सिक्योरिटी परचेज किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट के पास व्हाट? कैश आएगा. तो दैट कैश विल बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंडिचर
फॉर द एक्सपेंडिचर, या ये सिक्योरिटीज मान लो परचेज परचेज नहीं करेगी, सॉरी यहां देखो, द सेंट्रल बैंक शुड सेल, सेल नहीं, परचेज, परचेज करेगी, ठीक, परचेज होगा, सही है, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब परचेज करेगी या अदर सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल बैंक के सिक्योरिटीज परचेज करती है, तो कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये ऑन बिहाफ ऑफ, अब देखो यहां पर सेंट्रल बैंक खरीद रही है सिक्योरिटीज को, तो सिक्योरिटीज जब खरीदेगा तो ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा बिकेगा, तो कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पैसा बेचा, तो सेंट्रल बैंक ने दिया गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक को पैसा, और वह कॉमर्शियल बैंक वह मनी फिर मार्केट में देगा, गवर्नमेंट को देगा, तो दैट विल अगेन यूज्ड फॉर द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो मार्केट में आएगा तो फिर डिमांड और बढ़ेगा और फिर ये डिफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। और लास्ट है, पांचवा लिख लो आप लोग, रिडक्शन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट बता दूं मैं, ये आपका 1 लाख का एफडी है, आप जा रहे हो बैंक के पास, अचानक आपको पैसे की जरूरत हो गई, हमें पैसा चाहिए, तो बैंक के पास जाओगे तो बैंक क्या करती है, आपको 1 लाख रुपया नहीं देगा, सम मार्जिन इज बीइंग केप्ट बाय द बैंक। तो मान लो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, तो बैंक विल अलाउ अगेंस्ट योर 1 लाख एफडी या 1 लाख का गोल्ड लेके जाते हो आप, अगेंस्ट दैट कोलेटरल कह सकते हो, जिसको कोलेटरल कहा जाता है, तो उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपका जो एफडी है, चाहे गोल्ड लेके 1 लाख का गया, अगर 60,000 60% 40% अगर है, सॉरी 40% अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन गेट ओनली 60,000, वो 40% वो रख लेगा उस अमाउंट का, वो आपको नहीं मिलेगा, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है, उसको रिड्यूस करना चाहिए, सो दैट पीपल कैन गेट मोर मनी फ्रॉम द बैंक एंड दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इकोनॉमी में डिफिशिएंट डिमांड है, डिफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है इकोनॉमी में, हमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रहनी चाहिए कि अधिक से अधिक कैश मार्केट में हम भेजें, जिससे कि वो मेरा अधिक से अधिक डिमांड हो गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि डिफिशिएंट डिमांड है, डिफिशिएंट डिमांड को हमको अपलिफ्ट करना है, इसको इंक्रीज करना है। तो इन द टाइम्स ऑफ, राइट डाउन, इन द टाइम्स ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट का मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूं पहले आपको या मैंने कह ही दिया, आप लोग इसको समझ ही लिए होंगे। इन द टाइम्स ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट शुड, बैंक शुड, राइट ऑन हियर, बैंक करती है ये काम, बैंक शुड reduce margin requirement, margin requirement, reduction in margin requirement will lead the excess flow of money, excess flow of cash
of cash in the market as a result people will demand more goods and services, more goods and services, and by this consequently deficient demand can be corrected. और इस तरह डिफिशिएंट डिमांड हम कम कर सकते हैं। तो ये पांचों मेजर्स है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स का। आपने देखा पहला था कैश रिजर्व रेशियो, रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। दूसरा है रिडक्शन इन बैंक रेट। तीसरा है रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट। चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन और पांचवा है रिडक्शन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। By adopting all these policies, deficient demand can be corrected. ये हो गया। अब हम लोग just same will be followed, but इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ अगर रिडक्शन है तो फिर हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड में उसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ये हो गया, आप लोग लिख लो इसको अच्छी तरह से। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। ये सेम रहेगा, केवल हम लोग यहां लिख लेंगे मेजर्स टू करेक्ट, या आप लोग जहां जहां भी लिखे हो वहां पर इसको रिडक्शन के बजाय उसको इंक्रीज कर दो। सेम थिंग यू हैव टू डू। वैसे मैं लिख देता हूं आपको। इसको भी मैं लिख देता हूं, मेजर्स टू करेक्ट हो जाएगा दूसरा। दूसरा वीडियो बना दूं मैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको कि हाउ टू मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, यू विल मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।